اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اگلی رات فیروز چھپتا چھپاتا دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی۔ اس نے دیوار پر رسا پھینکا جس کا اگلا سرا دوسری طرف نیچے چلا گیا۔ آزاد موجود تھی۔ اس نے رسا پکڑ لیا اور کہیں باندھ دیا۔ فیروز رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ جماتا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے رسا دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسود کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ آزاد نے کہا، آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتا ہے۔ یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے، ایسا دیو جو شراب پیتا ہے اور عورتوں کو کھاتا ہے۔ تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے، اتنا لمبا اور چوڑا جسم تلوار کے ایک دو وار کو شراب کی طرح پی جائے گا۔ اسے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا۔ فیروز نے کہا، اسے ہلاک کرنا ہے خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤں۔ آزاد نے کمرے کا دروازہ ذرا کھولا اور باہر دیکھا۔ اس غلام گردش کے اگلے سرے پر ایک پہرے دار کھڑا رہتا تھا۔ وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی روشنی والا ایک فانوس جل رہا تھا۔ اسود پیٹھ کے بل بستر پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ مورخ بلازری نے اس دور کی تحریروں کے 2 حوالے دے کر لکھا ہے کہ جب آزاد اسود کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شعلہ آیا ہو۔ یہ انتقام اور نفرت کا شعلہ تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آؤ فیروز، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسود کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسود جنگلی سانڈ جیسا انسان تھا۔ کمرے میں شراب اور گناہوں کا تعفن تھا۔ جانے ایسا کیوں ہوا کہ اسود بیدار ہو گیا۔ اپنے وزیر اور اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آزاد کو وہ قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ فیروز کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہوا ہوگا۔ اسود نے نشے سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، اس وقت کیا مصیبت آ گئی ہے؟ فیروز نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا، تلوار کھینچی اور پوری طاقت سے اسود کی گردن پر وار کیا۔ اسود نے گردن بچا لی اور تلوار اس کے ننگے سر پر لگی۔ اسود کے منہ سے چیخ نما آوازیں نکلی اور بستر سے لڑک کر دوسری طرف گرا۔ غلام گردش میں دوڑتے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ آزاد تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر لیا۔ پہرے دار دوڑا آ رہا تھا۔ آزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرے دار کو روک لیا۔ کمرے سے اسود کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ آزاد نے پہرے دار کو تحکمانہ لہجے میں کہا، واپس اپنی جگہ چلے جاؤ، رحمان الیمن کے پاس فرشتہ آیا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، جاؤ ادھر مت آنا۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا اور چلا گیا۔ آزاد اندر آئی تو دیکھا کہ اسود فرش سے اٹھ کر بستر پر گر رہا ہے اور فیروز دوسرے وار کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسود بستر پر گر پڑا۔ اس کا سر پلنگ کے بازو پر تھا اور سانڈوں کی طرح ڈکار رہا تھا۔ آزاد نے آگے بڑھ کر کہا، تم اسے مار نہیں سکو گے فیروز۔ اس نے اسود کے بال جو لمبے تھے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کو کھینچے اور وہ خود فرش پر بیٹھ گئی۔ پھر بولی، اب اس کی گردن کاٹ دو۔ فیروز نے ایک ہی وار سے اسود کی گردن صاف کاٹ کر سر جسم سے الگ کر دیا۔ فیروز کے ساتھیوں قیس عبد غوث اور دازویہ کو معلوم تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ فیروز نے اسود کا سر اٹھایا اور ان دونوں کے ہاں جا پہنچا۔ محافظوں اور پہرے داروں کو رحمان الیمن کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے محل کو محاصرے میں لے لیا۔ آزاد فیروز کے ساتھ رہی۔ محل میں بھگدڑ مچ گئی۔ حرم کی عورتوں کا ہجوم چیختا چلاتا باہر کو بھاگا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ اور دبر بن جہنس سرکردہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر چکے تھے اور دن رات زمیندوز سرگرمیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر چکے تھے۔ اگلی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا۔ محل کی چھت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ محل میں اذان۔ لوگ محل کو دوڑے۔ اسود کی فوج حکم کی منتظر تھی لیکن حکم دینے والا قیس عبد غوث تھا۔ وہی سپاہ سالار تھا۔ اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا۔ اسود کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اسود انسی کذاب ہے۔ اسود کے پیروکاروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معرف محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں فیروز کی زبان
तबरानी एक रिवायत पेश की है। फिरोज ने कहा था, असवद को कत्ल करके हमने वहाँ का इंतजाम पहले की तरह रहने दिया, यानी जिस तरह असवद के तसल्लुत से पहले था। हमने कत्ल के बाद पहला काम ये किया कि माज बिन जबल को बुलाया कि वो हमें बाजमात नमाज पढ़ाएं। हम बेइंतहा खुश थे कि हमने इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया, लेकिन अचानक ही इत्तला मिली कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं। इस खबर से यमन में अबतरी सी फैल गई। फिरोज को मुसलमानों ने सना का हाकिम मुकर्रर कर दिया। ये वाक़या 632 ईस्वी का है। कैस बिन हुबैरा और दबर बिन जहनस जून 632 ईस्वी के दूसरे हफ्ते में ये खुशखबरी लेकर मदीना पहुँचे कि झूठा नबी अपने अंजाम को पहुँच गया है और यमन पर इस्लामी परचम लहरा दिया गया है, लेकिन मदीना सोगवार था। 5 जून 632 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। ये खबर जूं-जूं फैलती गई जंगल की आग ही साबित हुई। जहां पहुंची वहां शोले उठने लगे। ये शोले बगावत के थे। एक तो इस्लाम के दुश्मन थे जिन्होंने अपनी तखरीबी सरगर्मियां तेज कर दी। दूसरे वो कबाइल थे जिन्होंने सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल किया था कि उनके सरदार मुसलमान हो गए थे। ऐसे कबीले इतने ज्यादा नहीं थे जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया था। बाकी तमाम कबीले इस्लाम से न सिर्फ मुनहरिफ हो गए, बल्कि उन्होंने मदीने के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया और मदीना पर हमले की बातें करने लगे। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बागी कबीलों को पैगाम भेजे कि वो इस्लाम को न छोड़ें। कासिद जहां भी गए वहां से उन्हें जवाब मिला कि हमारा कबूल इस्लाम सिर्फ एक शख्स के साथ मुआहिदा था, वो शख्स नहीं रहा तो मुआहिदा भी नहीं रहा। अब हम आजाद हैं और हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। तीसरा और सबसे खतरनाक फितना झूठे मुदय्याने नबूवत का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नबूवत के झूठे दावेदार पैदा हो गए थे। उनकी पुश्त पनाही रूमी, ईरानी और यहूदी कर रहे थे। इन झूठे नबियों में एक खूबी मुश्तरक थी, वो शोबदेबाज और जादूगर थे। शोबदेबाजी और जादूगरी में यहूदी माहिर थे। असवद अंसी का जिक्र हो चुका है, वो भी शोबदेबाज था। नबूवत के दूसरे 2 दावेदार तुलैहा और मुसलमा थे। मुसलमा खास तौर पर शोबदेबाजी में महारत रखता था। ऐसे शोबदे पहले कोई न दिखा सका था। मसलन वो परिंदे के पर उसके जिस्म से अलग करके दिखाता, फिर परिंदे और परों को इकट्ठे हाथों में लेकर ऊपर फेंकता तो पर परिंदे के साथ होते और वो परिंदा उड़ जाता। मुसलमा बदसूरत इंसान था। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे ये इंसान का नहीं हैवान का चेहरा हो। खद्दोखाल भी हैवानों जैसे थे। उसका कद छोटा था, चेहरे का रंग जर्द था, लेकिन उसके जिस्म में गैर मामूली ताकत थी। उसकी आंखें गैर कुदरती तौर पर छोटी और नाक चपटी थी। ये एक भद्दे आदमी की तस्वीर है जिसे कोई बदसूरत इंसान भी पसंद नहीं कर सकता। मगर जो औरत खा वो कितनी ही हसीन और सरकश क्यों ना होती, उसके करीब जाती तो उसकी गर्विदा हो जाती और उसके इशारों पर नाचने लगती। मुसलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नबुव्वत का दावा किया था और 2 कासिदों के हाथ एक खत इन अल्फाज में लिखा था, मुसलमा रसूलुल्लाह की जानिब से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम, नाउज़ुबिल्लाह, आप पर सलामती हो। बादहू वाज़े हो कि मैं रिसालत में आपका शरीक बनाया गया हूँ, लिहाजा निस्फ जमीन मेरी है और निस्फ कुरैश की, मगर कुरैश इंसाफ नहीं कर रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पढ़ा और कासिदों से पूछा कि मुसलमा के इस अजीबोगरीब पैगाम के मुताल्लिक उनकी क्या राय है। एक कासिद ने जवाब दिया, हम वही कहते हैं जो खत में लिखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुदा की कसम, अगर कासिदों के कत्ल को मैं रवा समझता तो तुम दोनों के सर तन से जुदा कर देता। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलमा को इस खत के जवाब में लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, मुसलमा कज़्ज़ाब के नाम, जमीन अल्लाह की है, वो अपने मुत्तकी बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है। उसके बाद मुसलमा को सब कज़्ज़ाब कहने लगे और इस्लाम की तारीख ने भी उसे मुसलमा कज़्ज़ाब ही कहा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों बिस्तरे अलालत पर थे। आप अलैहिस्सलाम ने जरूरी समझा कि जिस शख्स ने ये जसारत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमीन का मुतालबा कर दिया है, उसकी सरगर्मियों और लोगों पर उसके असरात को फौरन खत्म किया जाए। आप अलैहिस्सलाम की निगाह एक शख्स निहारुन रिजाल पर पड़ी। उस शख्स ने इस्लाम कबूल करके दीन की तालीम हासिल की थी। कुरान की आयत पर उसे उबूर हासिल था और वो आलिम फाजिल कहलाने के काबिल था। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर हिदायत दी कि वो यमामा जाए और लोगों को इस्लामी तालीम दे। आप अलैहिस्सलाम ने रिजाल को अच्छी तरह समझाया कि मुसलमा के असरात ज़ाइल करने हैं ताकि खून खराबे के बगैर ही ये शख्स गुमनाम और उसका दावा बेअसर हो जाए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में रिजाल रवाना हो गया। मुसलमा बिन हबीब, जो मुसलमा कज़्ज़ाब के नाम से मशहूर हुआ था, रात को अपने दरबार में बैठा था। शराब का दौर चल रहा था। दरबार में उसके कबीले के सरकर्दा अफराद बैठे हुए थे। वो सब उसे अल्लाह का रसूल मानते थे। उसने अपने मजहब को इस्लाम ही कहा था, लेकिन कुछ पाबंदियां हटा दी थी। मसलन उसने अपनी एक आयत खड़कर अपने पैरोकारों को सुनाई कि उस पर वही नाजिल हुई है कि शराब हलाल है। दीगर ऐशो इशरत को भी उसने हलाल करार दे दिया है। उसका दरबार जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। निहायत हसीन और जवान लड़कियां उसके दाएं बाएं बैठी थीं और दो उसके पीछे खड़ी थीं और दो उसके पीछे। मुसलमा किसी लड़की के बालों में हाथ फेर कर और किसी के गालों को थपक कर बात करता। एक आदमी दरबार में आया। वो बैठा नहीं, खड़ा रहा। सबने उसकी तरफ देखा। मुसलमा ने जैसे उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत ही न समझी। उसे मालूम था कि वो किसी के कहे बगैर बैठ जाएगा, मगर वो खड़ा रहा। मुसलमा ने उसे कहा, क्या तू हम पर पहरा देने आया है या तू अल्लाह के रसूल के हुक्म के बगैर बैठ जाना बदतहजीबी समझता है? उस आदमी ने कहा, एक खबर लाया हूँ। मदीने से एक आदमी आया है। वो बहुत दिनों से यहाँ है और वो उन लोगों को जिन्होंने कभी इस्लाम कबूल किया था ये बताता फिरता है कि सच्चा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बाकी सब कज़्ज़ाब हैं। मैंने खुद उसकी बातें सुनी है। उसका नाम रिजाल है। दरबार में बैठे हुए दो आदमी बैक वक्त बोले, निहारुन रिजाल। फिर एक ने कहा, वो मुसलमानों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंसूर नजर है। मैं उसे जानता हूँ, उसके पास इल्म है। दरबार में बैठे हुए एक आदमी ने गरज कर कहा, ऐसे शख्स को जिंदा न छोड़े। एक और आदमी ने कहा, ए खुदा के रसूल, क्या तू मुझे इजाजत नहीं देगा कि मैं उस बदबख्त का सर काट कर तेरे कदमों में रख दूं? मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा, नहीं। अगर वो आलिम है और उसने मोहम्मद के कुरान की तालीम हासिल की है तो मैं उसे कहूंगा कि मेरे दरबार में आए और मुझे झूठा साबित करे। मैं उसे कत्ल नहीं होने दूंगा। उसे कल रात मेरे पास ले आना। उसे यकीन दिलाना कि उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। रिजाल को मुसलमा के एक आदमी ने कहा कि उसे अल्लाह के रसूल मुसलमा बिन हबीब नौज़ुबिल्लाह ने अपने यहाँ मदऊ किया है। रिजाल ने कहा, क्या वो मेरे कत्ल का इंतजाम यही नहीं कर सकता? मैं उसे अल्लाह का रसूल नहीं मानता। मुझ पे ये लाजिम नहीं कि मैं उसका हुक्म मानूं। मुसलमा के एलची ने कहा, वो जहाँ चाहे तुम्हें कत्ल करवा सकता है। उसमें ये ताकत भी है कि फूंक मार दे तो तेरा जिस्म मुर्दा हो जाए। वो तुझे जिंदा देखना और रुखसत करना चाहता है। मुसलमानों ने रिजाल से कहा कि वो उस कज़्ज़ाब के यहाँ न जाए। रिजाल ने कहा, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल नहीं, ये सदाकत और कज़्ज़ाब का सवाल है। अगर एक कज़्ज़ाब को सिद्क से बहरावर करने में मेरी जान चली जाती है तो ये सौदा महंगा नहीं। रिजाल ने कहा, मैं आऊंगा, आज ही रात आऊंगा। मुसलमा से कहना कि तू अगर सच्चा नबी है तो अपने वादे से फिर न जाना। एलची ने मुसलमा कज़्ज़ाब को रिजाल का जवाब बताया। रिजाल यमामा के किले में रहता था। मशहूर मौरिख तबरी ने लिखा है कि मुसलमा अपने खास मेहमानों के लिए बड़ा खुशनुमा खैमा नस्ब करवाया करता था, जिसकी साख्त मकान जैसी होती। ये खैमा अंदर से बड़े दिलफरेब तरीकों और कपड़ों से सजाया जाता। सहरा की रातें सर्द होती थी, इसलिए मुसलमा खैमे में बड़ा खूबसूरत आतिशदान रखवा दिया करता। उस आतिशदान में वो कोई चीज या ऐसी जड़ी बूटी रख दिया करता था जिसकी खुशबू इत्र की तरह होती, लेकिन ये खुशबू उस पर ऐसा असर करती जैसे उस खैमे में सोने वाले को हिप्नोटाइज कर लिया गया हो। मुसलमा का शिकार बेहोश या बेखबर नहीं होता था, बल्कि वो मुसलमा के इशारों पर नाचने लगता। खुद मुसलमा पर उसका ये असर नहीं होता था। मुसलमा कज़्ज़ाब को जब ये इत्तला मिली कि रिजाल आ रहा है तो उसने अपना मखसूस खैमा नस्ब करवाया और उसमें वो तमाम इंतजामात करवा दिए जो वो करवाया करता था। उसने रात के लिए आतिशदान भी रखवा दिया। रिजाल आया तो मुसलमा ने बाहर आकर उसका इस्तकबाल किया। मुसलमा ने कहा, तुम एक रसूल के भेजे हुए आदमी हो और मैं भी रसूल हूँ, इसलिए तुम्हारा एहतराम मेरा फर्ज है। रिजाल ने कहा, मैं सिर्फ उसे रसूल मानता हूँ जिसने मुझे यहाँ भेजा है और मैं तुम्हें ये कहते हुए नहीं डरूंगा कि तुम कज़्ज़ाब हो। मुसलमा मुस्कुराया और रिजाल को खैमे में ले गया। तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि खैमे में मुसलमा और रिजाल के दरमियान क्या बातें हुई, कैसी सौदेबाजी या कैसा शोबदा या जादू था कि अगली सुबह जब रिजाल खैमे से निकला तो उसके मुंह से पहली बात ये निकली कि इसमें कोई शुबा नहीं कि मुसलमा अल्लाह का सच्चा रसूल है और उस पर वही नाजिल होती है। उसने ये तक कह दिया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहते सुना है कि मुसलमा सच्चा नबी है। रिजाल की हैसियत सहाबी की सी थी, इसलिए मुसलमानों ने उस पर एतबार किया। रिजाल बनु हनीफा से ताल्लुक रखता था।
रिजाल का ऐलान सुनकर बनु हनीफा के लोग जौक दर जौक मुसलमा को अल्लाह का रसूल मानकर उसकी बैत को आ गए। मौरिख लिखते हैं कि मुसलमा ने ये सोचकर रिजाल को कत्ल नहीं करवाया था कि वो आलिम है और सहाबी का दर्जा रखता है, अगर उसे हाथ में ले लिया जाए तो बैत करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। चुनाचे उस शख्स को हाथ में लेने के लिए आतिशदान का और अपनी जबान का जादू चलाया और रिजाल को अपना दस्ते रास्त बना लिया। रिजाल ने मुसलमा की झूठी नबुव्वत में रूह फूंक दी। अक्सर माँ बाप अपने नौज़ायदा बच्चों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते और आप अलैहिस्सलाम बच्चे के सर पर हाथ फेरा करते। रिजाल ने मुसलमा कज़्ज़ाब को मशवरा दिया कि वो भी नौज़ायदा बच्चों के सरों पर हाथ फेरा करे। मुसलमा को ये बात अच्छी लगी। उसने कई नौज़ायदा बच्चों और बच्चियों के सरों पर हाथ फेरा। मौरिखों ने लिखा है कि ये बच्चे जब सिन्ने बलूगत में दाखिल हुए तो उनके सरों के बाल इस तरह झड़ गए कि किसी मर्द या औरत के सर पर एक भी बाल न रहा। उस वक्त तक मुसलमा को मरे हुए जमाना गुजर गया था। इस दौरान एक औरत ने भी नबुव्वत का दावा किया। उसका नाम सज्जाह था। वो अल-हारिस की बेटी थी। उसे उम्मे सादरा भी कहा जाता था। उसकी माँ इराक के एक कबीले से थी और बाप बनु जरबू से ताल्लुक रखता था। अल-हारिस अपने कबीले का सरदार था। सजा बचपन से खुद सर और आजाद ख्याल थी। वो चूंकि सरदारों के खानदान में जनी पली थी, इसलिए दूसरों पर हुक्म चलाना उसकी सरिश्त में शामिल था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और अक्लमंद निकली। एक दो मौरिखों ने लिखा है कि वो गैबदान भी थी और वो आने वाले वक्त को कबल अज़ वक्त जान लेती। उसके मुताल्लिक इख्तिलाफ राय भी पाया जाता है, लेकिन ये बात सबने मुतफ़िक़ा तौर पर कही है कि सजा कुदरती तौर पर शायरा थी और हर बात मंसूम करती थी। उसकी जबान में चाशनी थी। उसकी माँ का कबीला ईसाई था, इसलिए सजा ने भी ईसाइयत को ही पसंद किया। सजा के कानों में ये खबरें पड़ी कि तुलैहा और मुसलमा ने भी नबुव्वत का दावा किया है और लोग उनकी बैत कर रहे हैं, तो उसने भी नबुव्वत का दावा कर दिया। वो जवान हो चुकी थी। खुदा ने उसे दीगर औसाफ के अलावा हुस्न भी दिया था। उसके सरापा और चेहरे पर ऐसा तासुर था कि लोग उससे मशहूर होकर उसे नबी मान लेते। बहुत से लोग उसकी शायरी से मुतासिर हुए। वो सिर्फ नबी बनकर कहीं बैठना नहीं चाहती थी। उसने अपने पैरोकारों की एक फौज तैयार कर ली और बनी तमीम के यहाँ जा पहुंची। उन कबाइल के जो सरदार थे वो रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए थे। ये थे ज़बरकान बिन बदर, कैस बिन आसिम, वकी बिन मालिक और मालिक बिन नवैरा। सजा ने मालिक बिन नवैरा को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि वो मदीने को तहक़ीक़ करने आई है और बनी तमीम उसका साथ दें। मालिक बिन नवैरा ने उसे बताया कि कई कबीले उसे पसंद नहीं करते, पहले उन्हें ज़ेर करना जरूरी है। सजा ज़ेर करने का मतलब कुछ और समझती थी। उसके पास अच्छा खासा लश्कर था। मालिक ने उसमें अपनी फौज शामिल कर दी और कबीलों की बस्तियों पर हमलावर हुए। कबीले उनके आगे हथियार डालते चले गए, लेकिन सजा ने उन्हें ये कहने की बजाय कि उसे नबी माने, उनके घर लूट लिए और उनके मवेशी छीन लिए। इस माल गनीमत से उसका लश्कर बहुत खुश हुआ। उसकी लूटमार की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। सजा एक मकाम नबाज पहुंची और उस इलाके की बस्तियों में लूटमार शुरू कर दी, लेकिन ये कबीले मुत्तहिद हो गए और सजा को शिकस्त हुई। वो एक और हमला करना चाहती थी, लेकिन उसे एक मजबूरी का सामना था। उसके लश्कर के कई सरदारों को नबाज के कबीलों ने पकड़कर कैद में डाल दिया। सजा ने अपना एलची उन कैदियों की रिहाई के लिए भेजा। कबीलों के सरदारों ने एलची से कहा, पहले इस इलाके से कूच करो, तुम्हें तुम्हारे कैदी मिल जाएंगे। सजा ने ये शर्त कबूल कर ली और अपने सरदारों को आजाद करवा के उस इलाके से निकल गई। उसके सरदारों ने उससे पूछा कि अब किधर का इरादा है। सजा ने कहा, यमामा। वहाँ मुसलमा बिन हबीब कोई शख्स है जिसने नबुव्वत का दावा कर रखा है, उसे तलवार की नोक पर रखना जरूरी है। एक सरदार ने उसे कहा, लेकिन यमामा के लोग जंगो जदल में बहुत सख्त हैं और मुसलमा बड़ा ताकतवर है। सजा ने कुछ अशार पढ़े जिनमें उसने अपने लश्कर से कहा था कि हमारी मंजिल यमामा है। मुसलमा कज़ाब ने अपने जासूसों को दूर दूर तक फैलाया हुआ था। उसे ये इत्तला दी गई कि एक लश्कर यमामा की तरफ बढ़ा रहा है। मुसलमा ने ये मालूम करवा लिया कि ये सजा का लश्कर है। उसने रिजाल को बुलाया। क्या तुमने सुना कि सजा का लश्कर आ रहा है रिजाल? लेकिन मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। तुम जानते हो कि उस इलाके में मुसलमानों की फौज मौजूद है जिसका सालार इक्रिमा है। क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि सजा और इक्रिमा की लड़ाई हो जाए और जब दोनों लश्कर आपस में उलझे हुए हों उस वक्त हम उन पर हमला कर दें? रिजाल ने कहा, अगर उनकी टक्कर न हुई तो तुम क्या करोगे? मुसलमा ने कहा, फिर मैं सजा के साथ दोस्ती का मुआहिदा करूंगा। तो
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।